this video, we are going to discuss about the angiography, angioplasty. The combination of them is called as the percutaneous coronary intervention. एंजियोप्लास्टी जो होता है दैट इज स्टेंट प्लेसमेंट, उसका दूसरा नाम होता है पीटीसीए. एक्चुअली उसका पूरा नाम होता है पीटीसीए, दैट इज परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी. बट हम सिंप्लिसिटी के लिए केवल एंजियोप्लास्टी वर्ड यूज कर लेते हैं, बाकी स्टेंट प्लेसमेंट का जो टेक्निकल नाम हो गया वो हो गया पीटीसीए. अब देखिए व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू इज कॉल्ड एज पीसीए. How it is done? So let's understand by this animated video that we are going to inject a metallic wire. You can take any of the approach. You can insert the metallic wire in the radial artery or the ulnar artery or the femoral artery, whichever is convenient for you. You can inject in that. For example, let's say in this patient, the coronary artery, one of the coronary artery is having the atherosclerosis like this. Now to identify that कि ये कौन सी आर्टरी, कौन सी कोरोनरी आर्टरी में किस जगह पे ये ब्लॉक बना हुआ है, हमने फीमोरल आर्टरी को चूज किया और फीमोरल आर्टरी में वी हैव इंसर्टेड अ मेटेलिक वायर. नाउ वंस यू आर गोइंग टू इंसर्ट द मेटेलिक गाइड वायर, यू आर गोइंग टू इंसर्ट इट प्रॉक्सिमली डालते रहेंगे और साथ में हम फ्लोरोस्कोपी करके देखते रहते हैं कि ये वायर कहाँ तक पहुँचा. वंस वी विल रीच टिल द रूट ऑफ एओर्टा, then we are going to remove the guide wire and then we are going to insert the another catheter wire. So here is our guide wire that is going in the aorta, is going proximally. We have reached in the root of aorta. Here is the root of aorta. वहीं से the coronary arteries are originating, the anti-aortic sinus, the left posterior aortic sinus. Now we are going to remove this and we are going to put the catheter there. Once we have done this, now we are going to inject the dye. Now you can see that we are injecting the dye here and this dye is going to flow in the coronary artery and we can identify that where is the block. So for example, the moment we injected the dye, and here you can see that we are injecting the dye and we have located that, okay, here is the block. Once we have located the block, now we need to do the angioplasty. So we are going to insert a second guide wire. We will reach there. This is a special one. It is having an inflatable balloon at the end. So now we are going to inflate the balloon. जैसे balloon inflate होगा, this atherosclerotic plaque will be compressed. और हम ये चाहते हैं कि ये compress ही रहे और it is not going to be regenerated. So we are going to put a metallic spring there that is called as the stent. And this entire procedure is called as the angioplasty. जो पहले किया that was angiography, and this stent placement which we are going to do, this is how the stent looks like. So now we are going to do the stent placement and this is how the stent placement will be done, and once it's done is the angioplasty. Now when you do the angiography, what you might find is that कि कितनी आर्टरीज में ब्लॉक है, कि एक ही वेसल में ब्लॉक है या दो वेसल्स में ब्लॉक है. अगर एक ही ब्लड वेसल में ब्लॉक आ रहा है तो सिंगल वेसल, दो में आ रहा है तो डबल वेसल और तीन कॉर्नरी आर्टरीज में अलग अलग जगह पे ब्लॉक आ रहा है तो ट्रिपल वेसल डिजीज. अगर एसवीडी या डीवीडी है देन कैन प्लान फॉर पीटीसीए. पीटीसीए मीन्स द स्टेंट प्लेसमेंट, मीन्स द एंजियोप्लास्टी. पहले जो हम स्टेंट यूज करते थे वो तो बेयर मेटल स्टेंट होते थे. आजकल जो हम यूज कर रहे हैं दीज आर द ड्रग कोटेड स्टेंट्स. We are using the drug coated stents. The drug coated stents that we are using nowadays, these are coated with sirolimus, paclitaxel. इनको sirolimus, paclitaxel, these are the basically is the anti cancer drug, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वहाँ पे सेल्स रीजनरेट हो, एंडोथेलियल सेल्स रीजनरेट हो और क्लॉट फॉर्मेशन हो. तो एसवीडी और डीवीडी है तो स्टेंट प्लेसमेंट कर देंगे. लेकिन अगर टीवीडी है, ट्रिपल वेसल डिजीज है, तो फिर हम स्टेंट प्लेसमेंट नहीं करते. फॉर टीवीडी, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिपल वेसल डिजीज, प्लान फॉर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, सीएबीजी को प्लान करेंगे, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग. हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? इफ यू सी दिस इमेज दैट विल गिव यू अ गुड आइडिया. फॉर एग्जाम्पल, दिस पेशेंट इज हैविंग मल्टीपल ब्लॉक्स इन द डिफरेंट एरिया. यहाँ पे भी ब्लॉक है, यहाँ पे भी ब्लॉक है, अलग अलग जगह पे ब्लॉक हो रखे थे. एंड द पेशेंट वॉज हैविंग ट्रिपल वेसल डिजीज की तीन जगह पे ब्लॉक हो रखे थे. सो वी हैव प्लान फॉर the bypass. So you can see that we have taken some another vessels as a graft and we have connected from the aorta directly to this particular junction, or from the subclavian artery we have connected like this. So we have used these grafts. तो अगर ग्राफ्ट करके इस तरीके की ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द CABG. अब क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं कि ये बाईपास ग्राफ्ट तो समझ में आ रहा है बट ये ग्राफ्ट वेसल्स आएंगे कहाँ से. सो फॉर ग्राफ्ट
ये ग्राफ्ट हम किसके बनाएंगे? फॉर ग्राफ्ट वी हैव लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी, या तो लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी को यूज कर लेंगे, दैट इज द बेस्ट ग्राफ्ट। अगर वो यूज नहीं करना चाह रहे, वी कैन यूज द ग्रेट सेफेनस वेन, जो हम पहले यूज करते थे, आजकल इतना कॉमनली यूज नहीं करते। वी कैन यूज रेडियल आर्टरी ऑल्सो। सो दीज आर द थ्री ग्राफ्ट्स दैट कैन बी यूज। सो एक क्वेश्चन आता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ ग्राफ्ट फॉर द CABG, लीमा, ग्रेट सेफेनस वेन एंड द रेडियल आर्टरी, इनको हम यूज कर सकते हैं। So this is all about the SVD, DVD and TVD. Now coming to the types of myocardial infarction. There are total 5 types of myocardial infarction we have. The first one is the classical one, which we have discussed in the other videos also. For example, the patient is having atherosclerotic plaque और ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस का प्लाक था ये रप्चर हो गया। द प्लाक रप्चर हुआ तो प्लेटलेट एग्रीगेट हुए, क्लॉट फॉर्मेशन चालू हो गया। जब ये सारी चीज़ें होती है उसकी वजह से ब्लड सप्लाई बहुत कम हो गया एंड द पेशेंट हैज़ डेवलप्ड द इन्फाक्शन। ब्लड सप्लाई कम होने से इन्फेक्शन हो गया। सो इफ डिक्रीज इन द ब्लड सप्लाई बिकॉज ऑफ द एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक रप्चर इज लीडिंग टू MI, दैट इज कॉल्ड एज द टाइप 1 MI। सो इन टाइप 1 MI में क्या हुआ? देर इज डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई टू मायोकार्डियम, डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई ड्यू टू प्लाक रप्चर। सो अगर प्लाक रप्चर होने की वजह से ये सारा प्रॉब्लम हुआ MI का, तो उसको बोल दिया टाइप 1 MI। अब देखिए टाइप 2 MI क्या होता है। टाइप 2 MI में ब्लड सप्लाई तो ठीक चल रहा है, कोरोनरी आर्टरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्लड सप्लाई का, बट व्हाट हैपेंड इज, फॉर एग्जांपल लेट्स से द पेशेंट इज हैविंग अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। हमें पता है कि हाइपरटेंशन जिनको होता है उनकी लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। सो व्हाट हैपेंड इज, बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन दिस पेशेंट हैज डेवलप्ड द लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो गया। अब अगर मसल की हाइपरट्रॉफी हो गई तो मसल को तो ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए, लेकिन आप देखिए ब्लड सप्लाई जितना मैक्सिमम हो सकता था उतना ही हो रहा है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज अगेन देयर इज अ मिसमैच। अब सप्लाई तो ठीक हो रही है लेकिन क्योंकि डिमांड बढ़ गई है तो रिलेटिवली ये सप्लाई कम पड़ेगी, रिलेटिवली ये सप्लाई कम पड़ेगी और इस पेशेंट को यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। सो इफ इन्फेक्शन हैपन्स, इफ देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, if there is increase in the demand of myocardium, मायोकार्डियम की डिमांड बढ़ गई और उसकी वजह से मायोकार्डियल इश्चेमिया इन्फेक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज टाइप 2। सो टाइप 1 क्यों हुआ? टाइप 1 तो हुआ था सप्लाई कम होने की वजह से, और टाइप 2 क्यों हुआ? डिमांड बढ़ गई उसकी वजह से MI हुआ, तो टाइप 2 बोल दिया। टाइप 3 क्या होता है? टाइप 3 का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक पेशेंट को बहुत तेज चेस्ट पेन हुआ, स्वेटिंग हुई, बहुत टिपिकल टाइप का चेस्ट पेन हुआ और जब उसको हॉस्पिटल लेके आ रहे थे ऑन द वे उसकी डेथ हो गई। सो देर इज सडन कार्डियक डेथ, सडन कार्डियक डेथ हुआ है। और जब हमने उसकी हिस्ट्री ली तो उसकी हिस्ट्री सुन के ऐसा लग रहा है, उसके फैमिली मेंबर्स बता रहे थे इसको बहुत तेज चेस्ट पेन हुआ था, स्वेटिंग हुई थी, ये सब हुआ था, तो हिस्ट्री सुन के लग रहा है कि इसको MI की वजह से इसकी सडन कार्डियक डेथ हुई है। सो सडन कार्डियक डेथ एंड हिस्ट्री इज सजेस्टिव ऑफ MI। हिस्ट्री से लग रहा है कि इसको MI की वजह से सडन कार्डियक डेथ हुआ है, तो फिर इस MI को कंफर्म करने के लिए आपको ऑटोप्सी करनी पड़ेगी एंड यू हैव टू फाइंड द इन्फेक्टेड जोन। सी नॉर्मली जब हम मायोकार्डियम को देखते हैं, नॉर्मली हम जब मायोकार्डियम को देखते हैं तो कुछ इस तरीके का दिखता है, लेकिन अगर किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है तो जो इन्फेक्टेड जोन होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ये जो इन्फेक्टेड जोन होता है इसको देखने के लिए हम जो स्टेन यूज करते हैं, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, if you just remember the word tetrazolium, that is also enough. Tetrazolium, triphenyl tetrazolium chloride हम यूज करते हैं to see the infected zone of the MI. Now coming to the type 4 and type 5. What is type 4 is, for example, आपने पेशेंट को आज MI हुआ और उसके लिए आपने स्टेंट प्लेसमेंट किया, मीन्स यू डिड द एंजियोप्लास्टी, उसकी सब कुछ ठीक चल रहा था, ब्लड सप्लाई सब अच्छा चल रहा था, देयर वाज नो प्रॉब्लम, बट आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स व्हाट हैपेंस इज जहाँ पे स्टेंट लगाया था वहीं पे एथेरोस्क्लेरोसिस वापस जनरेट हो गया और ये स्टेंट जो है वो फेल हो गया। सो एंजियोप्लास्टी की और उसके बाद में स्टेंट फेलियर हुआ। जैसे स्टेंट फेल हो जाएगा अगेन द ब्लड सप्लाई विल नॉट हैपन एंड द पेशेंट कैन डेवलप MI। सो अगर स्टेंट फेलियर की वजह से MI हुआ तो उसको बोल दिया टाइप 4 MI। इसी तरीके से द टाइप 5 MI इज, मान लीजिए आपने एक पेशेंट में CABG ऑपरेशन किया, ओपन हार्ट सर्जरी की, बाईपास लगाया
और ये जो बाईपास आपने लगाया था, ये धीरे धीरे इस बाईपास में ही एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। जो बाईपास वाला वेसल था उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया और उसकी ब्लड सप्लाई बिल्कुल खत्म हो गई और उसकी वजह से एमआई हो गया। सो पोस्ट सीएबीजी पेशेंट को एमआई हो गया, ग्राफ्ट फेलियर हुआ और उसके बाद एमआई हो गया। दैट इज कॉल्ड एज टाइप 5। सो देर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। टोटल 5 तरीके के मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गए। सबसे पहला वाला था दैट वाज डिक्रीज इन द ब्लड सप्लाई। टाइप 2 जो था दैट वाज इंक्रीज इन द डिमांड। टाइप 3 में सडन कार्डियक डेथ हुई थी, ऐसा लग रहा था एमआई की वजह से हुई होगी, तो उसको बोल दिया टाइप 3 एमआई। अगर स्टेंट फेलियर की वजह से एमआई होता है, मतलब कि स्टेंट लगाया था फेल हो गया, एमआई हो गया, दैट इज टाइप 4। और ग्राफ्ट लगाया था वो फेल होने के बाद एमआई हुआ, that is type 5 MI. So these are the various types of MI. Now coming to the complications of MI. It's a very important topic. Almost whenever they ask you the questions on MI, the first priority is to be given to the complications of MI. द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमआई में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है हमारे को एमसीक्यू में उसको पकड़ने के लिए, वो होती टाइमलाइन। हम टाइमलाइन से पता लगा सकते हैं कि कौन से डायग्नोसिस की बात चल रही है। सी, अगर वो ये बोलते हैं कि विद इन फर्स्ट फ्यू आवर्स ऑफ एमआई पेशेंट की सडन कार्डियक डेथ हुई है, विद इन फर्स्ट फ्यू आवर्स ऑफ एमआई पेशेंट की डेथ हो गई, देन द मोस्ट कॉमन कॉज और द मोस्ट लाइकली ईटियोलॉजी, मोस्टली इट इज ड्यू टू वेंट्रिकुलर अरिथमिया। अगर विद इन फर्स्ट फ्यू आवर्स में डेथ होती है, दैट मोस्टली इट इज ड्यू टू वेंट्रिकुलर अरिथमिया। द सेकंड कॉम्प्लिकेशन दैट कैन अकर बिटवीन 4 to 7 days आफ्टर एमआई। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव एडमिटेड अ पेशेंट ऑफ एमआई और सब कुछ सही चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एंड इट वॉज डे 5 और आप उसको डिस्चार्ज का प्लान कर रहे थे। नाउ व्हाट हैपेंड वाज, सी जहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है वो वाला एरिया जो होता है वो फाइब्रोज्ड हो जाता है, वो वीक हो जाता है, वो नेक्रोज हुआ था, उसमें फाइब्रोसिस हो गया, वो धीरे धीरे खराब हो गया। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, बिकॉज ये वाला एरिया जो था इस पेशेंट का रिलेटिवली वीक हो गया था, यहाँ की मायोकार्डियम, सो ये जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड को एओर्टा में पुश करेगा सिस्टोल के टाइम पे, तो जब क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत पावरफुल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ेगा और ये प्रेशर सब जगह लगेगा। दिस प्रेशर इज गोइंग टू बी एक्सर्टेड एवरीवेयर। और क्योंकि ये वाला एरिया इस पेशेंट का वीक हो गया था, क्योंकि ये वाला एरिया वीक हो गया था, तो हो सकता है यहाँ से फट जाए और यहाँ से ब्लड बाहर निकलने लग जाए। द मोमेंट द ब्लड विल कम आउट, द पेशेंट विल हैव डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, क्योंकि तो इट्स लाइक अ हेमरेज दैट इज हैपनिंग। सो बिटवीन 4 to 7 days, ऑल ऑफ ए सडन देयर इज सडन डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। पेशेंट को चेस्ट डिस्कम्फर्ट हुआ और एकदम से डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर होने लग गया। दिस पर्टिकुलर थिंग इज रेफर्ड एज फ्री वॉल रप्चर। तो फ्री वॉल रप्चर को हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है, अगर उन्होंने बोला है कि 4 to 7 days के बाद में एकदम से ब्लड प्रेशर कम हो रहा था, तो मतलब कि फ्री वॉल रप्चर हुआ है। नेक्स्ट इज आफ्टर 4 to 7 days देयर इज वन मोर कॉम्प्लिकेशन दैट कैन हैपन। सी हियर, मान लीजिए एक पेशेंट था, उसको यहाँ पे वेंट्रिकुलर सेप्टम में, मतलब कि पेशेंट को सेप्टल एमआई हुआ था। अगर सेप्टल एमआई हुआ था, जो ये सेप्टम था ये रिलेटिवली वीक हो गया, रिलेटिवली वीक हो गया। So now again the same problem can happen when the left ventricle is going to contract, will push the blood in the aorta, the pressure will be exerted here, everywhere the pressure will be exerted. तो हो सकता है कि यहाँ से ये फट जाए और जैसे ही ये फटेगा the blood will start coming from the left ventricle to right ventricle. So अगर वो बोलते हैं कि after 4 to 7 days of MI, what happened was there is a new murmur, पेशेंट को चेस्ट डिस्कम्फर्ट हुआ और एक नई मर्मर सुनाई दी जब हमने उसको ऑस्कल्टेट किया, और ये जो नई मर्मर थी, देयर वाज न्यू मर्मर विच वाज सिस्टोलिक, मतलब कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तब ये मर्मर आ रही थी, सिस्टोल के टाइम पे आ रही थी, और ये कहाँ पे सुनाई दे रही थी, एट लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर, लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर। Then the complication that we are thinking is the septal perforation, means the diagnosis is going to be ventricular septal defect. So MI के बाद में ventricular septal defect भी हो सकता है। कैसे आइडेंटिफाई करना है MCQ के अंदर, अगर उन्होंने बोला है कि 4 to 7 days के बाद में पेशेंट को एक नया मर्मर, हमने जब ऑस्कल्टेट किया तो नया मर्मर सुनाई दिया, कहाँ पे था, लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर पे सिस्टोलिक मर्मर था, दैट इज गोइंग टुवर्ड्स VSD. There is one more complication that can happen between 4 to 7 days of MI. See, for example, द मिट्रल, ये जो मिट्रल वाल होता है बिटवीन द लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको होल्ड करने का जो काम करता है दैट इज पेपिलरी मसल. सो फॉर एग्जांपल, लेट्स से द पेशेंट हैज डेवलप्ड द मायोकार्डियल इन्फेक्शन समवेयर इन दिस एरिया, जहाँ पे पेपिलरी मसल्स अटैच हो रहे थे उस एरिया में पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो पेपिलरी मसल जो है वहाँ से डी अटैच हो जाएंगे क्योंकि वो एरिया तो नेक्रोज हो गया, और जैसे ही वो वहाँ से
सेपरेट हो जाएंगे, वो मिटल वाल को होल्ड नहीं कर पाएंगे. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब ब्लड एओर्टा में आता है, उस टाइम पे मिटल वाल बंद होना चाहिए. लेकिन क्योंकि इसका मिटल वाल तो कोई होल्ड ही नहीं कर पा रहा था, पेपिलरी मसल खराब हो गए थे. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज द लीकेज ऑफ द ब्लड इज गोइंग टू हैपन इन दिस एरिया. मीन्स द पेशेंट हैज डेवलप्ड अ मिटल रीगर्गिटेशन. पेपिलरी मसल का रप्चर हो गया और उसकी वजह से मिटल रीगर्गिटेशन होने लग गया. एंड जनरली दैट हैपेंस ऑन बिटवीन द 4 to 7 डे. सो अगर वो ये बोलते हैं कि 4 to 7 डे के बीच में पेशेंट को चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा था, एंड व्हेन वी ऑस्कल्टेटेड देयर वाज अ न्यू मर्मर एट मिट्रल एरिया ड्यूरिंग सिस्टोल, न्यू सिस्टोलिक मर्मर इन द मिट्रल एरिया बिटवीन द 4 to 7 डे, इट इज गोइंग टूवर्ड्स द मिट्रल रिगर्गिटेशन. तो आप देखिए मैंने दो मर्मर वाले क्वेश्चन यहाँ पे बताए. 4 to 7 डे ऑफ एमआई के बाद में पेशेंट में अगर मर्मर आ रहा है तो आपको ये देखना है कि कहाँ पे आ रहा है. लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर पे सुनाई दिया है या मिटल एरिया में सुनाई दिया. लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर पे है तो वीएसडी है, मिटल एरिया पे सबसे अच्छा सुनाई दे रहा है तो मिटल रिगर्गिटेशन है, पेपिलरी मसल्स का रप्चर हो गया. द नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन दैट कैन हैपन इज दैट इज गोइंग टू डेवलप. फॉर एग्जाम्पल, आज इस मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ आफ्टर अराउंड 4 to 6 weeks, means almost 1 to 1.5 month. Sometime what happens is after 1.5 month of MI, there is a wrong antibody formation. एक गलत एंटीबॉडी बन जाती है, एंड दिस रॉन्ग एंटीबॉडी इज अगेंस्ट पेरिकार्डियम एंड प्लूरा. देयर इज अ रॉन्ग एंटीबॉडी अगेंस्ट द पेरिकार्डियम एंड प्लूरा. जो हार्ट के चारों तरफ जो पेरिकार्डियम है वो, और जो लंग्स के चारों तरफ जो कवर होता है प्लूरा, उनके लिए गलत एंटीबॉडी बन जाती है. सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दीज एंटीबॉडीज आर गोइंग टू अटैक द पेरिकार्डियम और प्लूरा को अटैक करेंगे. जैसे ही ये गलत एंटीबॉडी पेरिकार्डियम और प्लूरा को अटैक करेंगे, पेरिकार्डियम में इन्फ्लामेशन हो जाएगा. देयर इज गोइंग टू बी एक्यूट ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस. इन द सेम वे द पेशेंट कैन हैव द प्लूराइटिस ऑल्सो, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज है ये प्लूरा को भी अटैक कर सकती है. सो एक्यूट ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस और प्लूराइटिस विल हैपन, एंड बिकॉज ऑफ दैट द पेशेंट इज गोइंग टू प्रेजेंट एज चेस्ट पेन. सो अगर वो ये बोलते हैं कि पेशेंट को एमआई तो 1-1.5 महीने पहले हुआ था, लेकिन अब पेशेंट को बहुत तेज चेस्ट पेन हो रहा है, और ये जो चेस्ट पेन होता है, ये चेस्ट पेन जो होगा मोर इज गोइंग टू अकर इन सुपाइन पोजिशन कंपेयर टू सिटिंग पोजिशन. वाई ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज सी व्हाट हैपन्स इज वी हैव 2 layers ऑफ पेरिकार्डियम अराउंड द हार्ट, द विसल पेरिकार्डियम एंड द पेरेटल पेरिकार्डियम. सो जब ये एंटीबॉडी अटैक करते हैं तो पेरिकार्डियम में इन्फ्लामेशन हो जाता है, और ये दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे से टकराने लग जाते हैं, और जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होता है उतना ज़्यादा पेन होता है, बिकॉज एक्यूट इन्फ्लामेशन में देयर इज गोइंग टू बी इडेमा. और जैसे ही ये मेम्ब्रेन में स्वेलिंग हुई, इडेमा हुआ, एक दूसरे से टकराने लगे. तो जब ये पेशेंट लाई डाउन करता है, सुपाइन पोजीशन में होता है, तो ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, ज़्यादा पेन होता है. जब ये सिटिंग लीनिंग फॉरवर्ड में चला जाता है, देयर इज लेस फ्रिक्शन, लेस पेन. So this particular thing is called as the autoimmune pericarditis that is happening after myocardial infarction. This is also referred as Dressler syndrome. This is one of the autoimmune condition where for the treatment we don't give steroid. Instead, we are going to give the high dose of aspirin. It is seen that if you give aspirin, the chance of reoccurrence of the Dressler is going to be less. It doesn't occur commonly. It occurs around less than 5% patients of MI. It's not common, less than 5% of MI के patient में होता है. So this is called as the Dressler syndrome. There is one more complication that can happen after myocardial infarction is, let's understand the first concept and then we are going to write down the details about that. For example, here is the left ventricle. We know that the function of left ventricle is to pump the blood in the aorta. Left ventricle का काम है blood को aorta में pump करना. लेकिन हम बोल रहे हैं कि patient को myocardial infarction हो गया इस एरिया में, और बहुत बड़ा myocardial infarction हुआ है, और क्योंकि पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है तो वो वाला जो एरिया था लेफ्ट वेंट्रिकल का वो अब काम ही नहीं कर रहा, वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा, वो तो नेक्रोज्ड हो गया. क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल बेसिकली अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा. लेफ्ट वेंट्रिकल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो जो ब्लड है वो यहीं पे इकट्ठा होने लग जाएगा. नाउ ट्रैफिक जाम लग जाएगा, धीरे धीरे लेफ्ट एट्रिया में ब्लड इकट्ठा होगा, पल्मोनरी वेन में इकट्ठा होगा, और अल्टीमेटली लंग्स के अंदर इकट्ठा होने लग जाएगा. मीन्स पेशेंट को पल्मोनरी इडेमा होने लग जाएगा, कंजेशन होने लग जाएगा. सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद में द पेशेंट कैन हैव लेफ्ट वेंट्रिकल डिसफंक्शन, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो सकता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर से पेशेंट को पल्मोनरी इडेमा हो सकता है.
नाउ दिस इज गोइंग टू बी एक्यूट कॉम्प्लिकेशन दैट इज गोइंग टू बी देयर। ऐसा सब में नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कि जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है वो कितना बड़ा हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकल का डिसफंक्शन कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा लेफ्ट वेंट्रिकल इन्वॉल्व हो गया उतना अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और उतना ही ज़्यादा पल्मोनरी एडेमा होने के चांस है। सो मान लीजिए एक पेशेंट आता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का, हमें उसमें देखना है कि उसमें ये हार्ट फेलियर मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर पल्मोनरी एडेमा के फीचर आ रहे या नहीं आ रहे। सो मान लीजिए अगर एक एमआई का पेशेंट है और उसके अंदर कोई भी लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर के फीचर नहीं आ रहे, हार्ट फेलियर का मतलब होता है लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, तो पेशेंट के अंदर कोई पल्मोनरी एडेमा के फीचर नहीं आ रहे, कोई लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर के फीचर नहीं आ रहे, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पेशेंट के अंदर पल्मोनरी एडेमा के फीचर आ रहे हैं और पेशेंट के अंदर 50% ऑफ द लंग्स के अंदर कैपिटेशन सुनाई दे रहे हैं, मतलब कि लोअर 50% में सुनाई दे रहे हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पेशेंट को इतना ज़्यादा पल्मोनरी एडेमा हुआ है कि पूरे पूरे के पूरे लंग्स के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक एपेक्स तक में वी आर एबल टू हियर द क्रेपिटेशंस। फोर्थ पॉसिबिलिटी है कि पेशेंट को पल्मोनरी एडेमा तो हुआ ही हुआ है, साथ में पेशेंट शॉक में भी चला गया। So these are the four possibilities which can happen after myocardial infarction if there is a left ventricle failure or I can say the heart failure. और ये क्लासीफाई करने के लिए ये जो क्लासिफिकेशन हम यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द किलिप क्लासिफिकेशन। तो एमआई के बाद में हार्ट फेलियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको क्लासीफाई करने के लिए जो स्टेजिंग हम यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड एज किलिप क्लासिफिकेशन। इफ देर इज नो साइन ऑफ हार्ट फेलियर दैट इज किलिप 1। अगर 50% ऑफ लंग्स के अंदर कैपिटेशन आ रहा है दैट इज किलिप 2। 100% लंग्स के अंदर आ रहे हैं तो किलिप 3, और कैपिटेशन के साथ में बीपी भी कम हो गया तो किलिप 4। सो दिस इज द नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन दैट इज देयर विद द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। नाउ वी हैव डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिजीज। वी हैव डिस्कस स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना। इसी से सिमिलर एक और टर्म होती है दैट इज प्रिंस मेटल एंजाइना। नाउ व्हाट इज प्रिंस मेटल एंजाइना? प्रिंस मेटल एंजाइना इज ऑल्सो रेफर्ड एज वेसोस्पास्टिक एंजाइना। It is also referred as variant angina. So let's understand ये होता क्या है। See, आपने देखा होगा कि जब भी आप विंटर में होते हैं, विंटर एक्सपो जब से फॉर एग्जांपल मान लीजिए बहुत ठंड पड़ रही है, द टेम्परेचर इज लेट्स से 2 डिग्री सेल्सियस, आपने जैकेट तो पहन रखा है, आपने ग्लव्स नहीं पहन रखे, आपके हाथ में बहुत हैवी ग्रॉसरी बैग्स हैं और आप बाहर से कहीं से अपने घर पे आ रहे थे, तो अब क्योंकि आपने ग्लव्स नहीं पहन रखे थे तो इतना ज़्यादा विंटर एक्सपोजर आपके हाथ पे होगा तो वहाँ की जो ब्लड वेसल है उसके अंदर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, इसलिए हमारे हाथ जो होंगे पेल हो जाते हैं और वो जो ग्रॉसरी बैग के निशान बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही घर पे आके आप वो बैग रखोगे तो धीरे धीरे आपके हाथ जो है वापस से रिटर्न बैक टू नॉर्मल पिंकिश, लाइट पिंकिश कलर के हो जाते हैं। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि जो विंटर एक्सपोजर की वजह से वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था वो धीरे धीरे वापस से वेसो डायलेशन होने लग जाता है। क्यों होने लग जाता है? क्योंकि हमारी जो एंडोथीलियल सेल्स होती है वो नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रीट करती है और नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है एक वेसोडाइलेटर होता है। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि कोरोनरी आर्टरी में अब मान लीजिए कि एक पेशेंट है, व्हाट इज हैपनिंग टू हिम इज कि कोरोनरी आर्टरी की जो एंडोथीलियल सेल्स है वो खराब है, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस द नाइट्रिक ऑक्साइड। अब देखिए आप और मैं अगर बिना जैकेट पहने बाहर 5 डिग्री 3 डिग्री या लेट्स से -5 डिग्री भी है और अगर हम थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए तो विंटर एक्सपोजर होगा चेस्ट पे, कोरोनरी आर्टरी में वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, हम इस फेज में पहुंचेंगे, बट विद इन नो टाइम वापस से हमारी कोरोनरी आर्टरी में वेसो डायलेशन हो जाएगा और हमारी ब्लड सप्लाई मायोकार्डियम को अच्छे से चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारी एंडोथीलियल सेल्स नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रीट करती है। बट जस्ट इमेजिन कि हमारे पास में एक पेशेंट आ रहा है, उसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि उसके एंडोथीलियल सेल्स डिफेक्टिव है। अगर एंडोथीलियल सेल्स डिफेक्टिव होंगे देयर इज गोइंग टू बी डिक्रीज इन द नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन, डिक्रीज इन द नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन ऑन विंटर एक्सपोजर। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बना सो देयर इज गोइंग टू बी अ प्रोलॉन्ग वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। कोरोनरी आर्टरी में वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन रहेगा लंबे टाइम के लिए, और जैसे ही अगर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ वी कैन से दैट द ब्लड सप्लाई विच इज हैपनिंग इज गोइंग टू बी वेरी लेस, बहुत ही कम हो जाएगी और उसकी वजह से पेशेंट को इस्चेमिया हो जाएगा। द पेशेंट विल डेवलप इस्चेमिया इन द मायोकार्डियम। सो प्रोलॉन्ग vasoconstriction will lead to ischemia, means the patient will have the chest pain that is referred as angina, and this particular thing is referred as the vasospastic angina or the Prinzmetal angina. सो प्रिंस मेटल एंजाइना का जो सबसे बड़ा हिंट होगा, पेशेंट जब भी विंटर में जा रहा है, जब भी विंटर एक्सपोजर हो रहा है, विंटर एक्सपोजर के बाद में पेशेंट को चेस्ट पेन होने लग जाता है, दैट इज गोइंग टुवर्ड्स द प्रिंस मेटल एंजाइना और द वेसोस्पास्टिक एंजाइना. सो क्लिनिकल फीचर, पेशेंट विल हैव द रिकरेंट चेस्ट पेन,
on winter exposure. It is associated with the Raynaud's phenomena. सी रेनॉल्ड्स फिनोमिना जो है बेसिकली वही सेम चीज अगर पेरिफेरल वेसल्स में होती है. मान लीजिए किसी की पेरिफेरल वेसल्स का एंडोथेलियल सेल खराब है, तो जब वहां पे विंटर एक्सपोजर होगा तो वहां पे भी वेसोडाइलेशन नहीं होगा, क्योंकि वेसोडाइलेशन कराने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड चाहिए, वो एंडोथेलियल सेल से आता है. तो अगर किसी के एंडोथेलियल सेल्स पेरीफेरी में खराब हैं तो पेरीफेरी में इस्चेमिया होने लग जाएगा. द फिंगर्स विल टर्न साइनोज्ड, विल हैव द पेल कलर, इनिशियली पेल देन साइनोज्ड. सो दैट इज कॉल्ड एज द रेनॉल्ड्स फिनोमिना. सो आपको एमसीक्यू में क्या हिंट मिलेगा कि पेशेंट को रिकरेंट चेस्ट पेन होता है जब भी वो विंटर एक्सपोजर होता है, उसको चेस्ट पेन होने लग जाता है, या फिर जब भी वो कोई ऐसी चीज खा लेता है जिससे वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है, जैसे कि कोकेन. इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द कोकेन इनटेक. सो दे माइट गिव यू द हिस्ट्री कि पेशेंट ने कोकेन खाया और कोकेन खाने के बाद बहुत चेस्ट पेन हो रहा है, बिकॉज हो सकता है कि उस पेशेंट के एंडोथेलियल सेल्स खराब है, क्योंकि कोकेन भी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा सकता है. व्हेन यू डू द ईसीजी, इन द ईसीजी यू माइट गेट एसटी एलिवेशंस. तो मान लीजिए एक पेशेंट आया आपके पास में, उसको चेस्ट पेन हो रहा था, आपने ईसीजी किया, आपको एसटी एलिवेशन दिख रहा था, तो आपके दिमाग में तो एक डायग्नोज बनेगा एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. इसको तो स्टेमी हो सकता है. इसको कैसे कंफर्म करेंगे? दो चीजें. आप एक तो इसका ट्रोपोनिन चेक करो. अगर ये एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा तो ट्रोपोनिन बढ़ा हुआ होगा. बट यहाँ पे देखिए, ये तो वेसोस्पास्टिक एंजाइना है, यहाँ पे तो इन्फार्क्शन नहीं हो रहा है. क्या हो रहा है? इस्चेमिया हो रहा है, और इस्चेमिया में तो ट्रोपोनिन नहीं बढ़ता है. सो द ट्रोपोनिन विल रिमेन नॉर्मल. एसटी एलिवेशन तो होगा लेकिन ट्रोपोनिन जो होगा वो नॉर्मल रहेगा. दूसरा, आपको इसमें हिंट मिलेगा कोकेन इंटेक का, रिकरेंट एक्सपोजर, विंटर एक्सपोजर का, इस तरीके का आपको हिंट दिया जाएगा एमसीक्यू में. व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट? सी द प्रॉब्लम वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या हुआ है. प्रॉब्लम इज द वेसोस्पाज्म हुआ है. प्रॉब्लम वेसोस्पाज्म हुआ है, उस वेसोस्पाज्म को हमें हटाना है, मतलब कि वेसो डायलेट करना है. सो आइदर यू कैन गिव नाइट्रेट्स or you can give calcium channel blocker, CCBs. So nitrates, or we can use the nitroglycerin even also for that. So the nitrates or the CCB will be used for the management of the Prinzmetal angina. So in this entire session of the coronary artery disease, we have discussed mainly 5 diseases: stable angina, unstable angina, NSTEMI, STEMI, and the Prinzmetal angina. Let's understand how they are going to frame the MCQ. So this is an exercise for you. The exercise for you. The first thing that you have to look is, for example, the patient is coming, the chest pain at rest. The moment you see chest pain at rest, the possibility is it's a acute coronary syndrome, means either it's a USA, NSTEMI or STEMI. The next thing that you will look is there is no ST elevation. The moment there is no ST elevation, मतलब कि ST elevated MI तो rule out हो गया. अब दो पॉसिबिलिटी बच गई, या तो ये USA है या ये NSTEMI है. The moment you see that there is troponin is increased, troponin बढ़ा हुआ है, मतलब कि ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, क्योंकि इसमें एसटी एलिवेशन नहीं हो रखा था. सो द आंसर इज गोइंग टू बी द नॉन एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. नॉन एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. इन द सेम वे लेट्स डू द नेक्स्ट वन. द चेस्ट पेन एट एक्सर्शन ओनली. जब भी वो एक्सर्शन करता है तो ही चेस्ट पेन होता है, रेस्ट पे चेस्ट पेन हो ही नहीं रहा है. अगर रेस्ट पे चेस्ट पेन नहीं हो रहा है, केवल एक्सर्शन पे होता है, देन इट इज गोइंग टुवर्ड्स द स्टेबल एंजाइना. ओके, द नेक्स्ट वी आर सीइंग इज इफ द पेशेंट इज हैविंग चेस्ट पेन एट रेस्ट, ST elevations are there and the troponin is increased, then it is a clear-cut ST elevated myocardial infarction. If they are saying that the chest pain at rest, there is no ST elevation, but and the troponin is also normal. Troponin is also normal. Chest pain rest पे हुआ है. Chest pain rest पे हुआ है means there are 3 possibility: USA, NSTEMI. क्योंकि एसटी एलिवेशन नहीं है तो स्टेमी रूल आउट हो गया, और क्योंकि ट्रोपोनिन भी नहीं बढ़ा हुआ तो एनस्टेमी भी रूल आउट हो गया. सो द आंसर इज यूएसए. Recurrent chest pain on winter exposure. The moment you see the winter exposure word, it is going to be Prinzmetal angina. Chest pain is occurring after 4 weeks of MI. 4 to 6 weeks of MI में जो chest pain होता है, that is because of the Dressler syndrome, autoimmune acute pericarditis. If the patient is having shock on the 5th day post MI, the shock on the 5th day of post MI, it is going towards free wall rupture. So these are the various possibilities when it comes to the acute coronary syndrome. If we see the summary of this entire chapter, it was a little extensive, little lengthy chapter. So let's see the summary. When it comes to the ECG changes, the transmural infarction, if there is a complete 100% block, there is a complete thickness infarction happens in the ECG, we are going to have the ST elevations. Subendocardial ischemia will lead to ST depressions. When it comes to the localization of myocardial infarction,
if the ST elevation or any particular change is happening in second third AVF में change आ रहा है, it is going towards inferior wall MI. If the changes are there in first AVL V5 V6, it is going towards the involvement of the lateral wall. V1 to V4, it is anterior wall involvement. If the patient is having MI with bradycardia, there is only one MI which can have bradycardia, that is inferior wall MI. इसीलिए inferior wall MI के ट्रीटमेंट में हम बीटा ब्लॉकर नहीं दे रहे थे. इंस्टेड समटाइम वी कैन यूज इवन एट्रोपिन. The marker of reinfarction. The marker of reinfarction is going to be quantitative troponin. If you do some old MCQ, you might get the answer of CPK-MB, but the current one is the quantitative troponin. The best viability test is PET scan. TMT को हम पॉजिटिव कब मानते हैं? TMT is considered positive if the ST depression is more than 2 mm at least in 2 contagious leads, and that at least persist for 80 millisecond. Stable angina, the maximum mortality reduction in the stable angina is beta blocker followed by aspirin. मैक्सिमम तो बीटा ब्लॉकर से. कार्डियक फाइब्रोसिस, कार्डियक रीमॉडलिंग को कम करता है बीटा ब्लॉकर. When it comes to door to needle time, अगर आप थ्रोम्बोलाइसिस कर रहे हो, the thrombolysis should start within 30 minutes. अगर प्राइमरी PCI कर रहे हो, that should start within 90 minutes. When it comes to the various types of PCI, if you are doing PCI after successful thrombolysis, that is called as check PCI. If you are doing after unsuccessful PCI, that is called as rescue PCI. एंड यूएसए एंड स्टेमी में जो पीसीआई करते हैं उसको हम बोलते हैं डिलेड पीसीआई, क्योंकि उसके अंदर हम टीमी स्कोर कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में करेंगे. When it comes to variant angina, which is also called as the Prinzmetal angina, variant of Prinzmetal, इसके ट्रीटमेंट में the drugs that we are going to give is the nitrates calcium channel blocker. Right, so this is all about the chapter of the ischemic heart disease. Thank you.